بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ میرے قبائلی اضلاع کے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، کرم، اورکزئی، باجاواڑ، مومان اور جتنے بھی ایف آرز ہیں اور خیبر کے جتنے بھی مشران آئے ہیں، سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں خیبر کے ہمارے جتنے بھی سیاسی اتحاد کے دوست ہیں، جتنے بھی ہمارے مشران کشران جوان یہاں آئے ہیں اور اس امن جرگے کو چار چاند لگائے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قبائلی اضلاع میں سے ایک نوجوان کو صوبہ خیبر پختونخوا کا پہلے وزیر اعلیٰ نامزد کیا اور پھر اس کے قافلے کے دوستوں نے مجھے وزیر اعلیٰ منتخب کیا، تو اس شناخت پر میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے قبائلی عوام کی طرف سے کہ جن قبائلی نوجوانوں کا، جن قبائلی مشران کا، پورے قبائلیوں کا آپ وجود تسلیم نہیں کر رہے تھے، الحمدللہ آج ہم نے شناخت مل گئی ہے، الحمدللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تھوڑا میرے عزیز ساتھیوں، قبائلیوں کی تاریخ پڑی ہے۔ ان قبائلی اضلاع میں فرنگی آئے، فرنگیوں کی کاپیاں یہاں اس سرزمین پر پڑی ہے، لیکن ہم پر حکومت نہیں کر پائے۔ اس سرزمین پر مغل آئے لیکن ناکام ہوئے، ان کو واپس بھیجا۔ اس سرزمین پر رشیا، امریکہ نے ناکام کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پاکستانیوں، پاکستان میں یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا۔ تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے۔ آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ جس دن میرا نام اناؤنس ہوا تو انہوں نے جو ہے مجھ سے میرے خلاف پریس کانفرنس شروع کی کہ اس افریدی کو ہم نہیں مانتے۔ افریدیوں کی تاریخ پڑی ہے۔ عجب خان افریدی کے گھر پر کسی نے اس کی چادر چار دیوالی کی پامالی کی تو اس کی ہسٹری بھی دیکھو، اس کی تاریخ بھی دیکھو۔ ملک دریا خان افریدی کا نام تو سنا ہوگا، نہیں سنا تو اس کی تاریخ بھی دیکھو۔ شیر علی افریدی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، نہ سنا ہو تو اس کی تاریخ بھی دیکھو۔ اس سرزمین پر صرف غیرت مند لوگ پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم سب قبائلی جو ہیں وہ غیرت مند ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، انیس سو سینتالیس سے لے کر 9/11 تک پاکستان کی جتنی سرحدات ہیں جو قبائلی اضلاع سے ٹچ ہوتی ہیں، ان سرحدات کی حفاظت ہم قبائلیوں نے بغیر تنخواہ کی ہے۔
किसी की ये मजाल नहीं थी, किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में अंदर दाखिल हो। लेकिन 9/11 के बाद कुछ फैसलासाज बंद कमरों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। उस पराई जंग में कूदने का फैसला हमारी इजाजत के बगैर हुआ था, हमसे पूछे बगैर हुआ था। लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम कबाइलियों को बनाया गया और पाकिस्तान पर जो है पराई जंग मुसल्लत की गई। हमने वो कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए हमने लब्बैक कहा। हमने अपने घर बाहर छोड़े, यहां पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारे मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था वो नंगे पांव इन सड़कों पर जो है घूम रही थी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी मुसलसल की गई। लेकिन हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना है, हमने वो कुर्बानी दी। हमसे रियासत पाकिस्तान ने कुछ वादे किए जब हम आईडीपीज बने। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या वो वादे पूरे हुए? 2018 में DGI-SPR और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कबाइली अजला क्लियर है, खास करके खैबर क्लियर है। लेकिन उसके बाद 2022 में एक दफा फिर फैसला किया गया कि यहां पर जो है इनसे मुज़ाकरात होते हैं, इनको लाया गया। आप लोगों ने इनकार किया था, यहां हमारे मशरान बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि ये हमें कबूल नहीं, कहा था, हाथ उठाए, कहा था आप लोगों ने कि हमें कबूल नहीं। लेकिन इनको नेशनल पॉलिसी के तहत दोबारा यहां पर आबाद किया। हमने अमन पासून किए, हमने रियासत को बोला कि हम मजीद कुर्बानी नहीं दे सकते, हमें मजीद कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, हमारे सर के सौदा करके आप मजीद डॉलर ना कमाए। लेकिन रियासत नहीं मानी, कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, एक दफा फिर जेट से बमबारी की जा रही है, यहां मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। मेरी तिला में 21 लोग, बेगुनाह लोग शहीद किए जा रहे हैं। हम एहतजाज करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हम पर सीधी फायरिंग करते हैं। तो हम एक दफा फिर कुर्बानी क्यों दे? हम एक दफा फिर क्यों कुर्बान हो? इससे पहले जो हमने कुर्बानियां दी हैं उसका क्या बना? उसका हिसाब कौन देगा? इन जालिमों से, इन जाबिरों से सवाल कौन करेगा? इंशाल्लाह इस दफा मेरी आवाम करेगी और मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये जरगा कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है। इन मुतालबात में आपने मेरा साथ देना है। चूंकि हम पर ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने 80,000 शोधा पेश किए, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी CTD ने कुर्बानियां दी, हमारी लेविस फोर्सों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद यहां पर अमन कायम हुआ था। लेकिन एक दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहां पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। जो जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, हम अमन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। लेकिन हम हरगिज
कोलेटरल डैमेज जैसे नासूर का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे किसी मासूम शहरी की इस दफा जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका हिसाब किताब भी होगा और डंकी की चोट पे होगा इंशाअल्लाह ताला। आज तमाम कबाइली रियासत पाकिस्तान से मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मर्ज अजला, हमारी कबाइली अजला जो है, इसके जिस भी इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उसमें सूबाई हुकूमत, यहां के मशरान, यहां के अमीदीन, यहां के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो इसके साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हमें बंद कमरों के फैसले नामंजूर है, हाथ उठाए, नामंजूर है। अमन के साथ साथ हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की भी चाहते हैं, लेकिन मर्द होते वक्त हमारे कबाइली इजला के साथ कुछ वादे किए गए। जॉन रिकॉर्ड है कि वो इन कबाइली अजला को 100 अरब रुपए सालाना देंगे, जो वफाकी हुकूमत ने अभी तक पूरे नहीं किए। हमारा यह मुतालबा है कि जो 550 अरब रुपए अभी तक मर्ज अजला का बकाया है वो हमें फिल फौर जो है दिया जाए। जो मुतफिक है इसके साथ हाथ उठाए। हमारे कबाइली मशरान, हमारे कबाइली नौजवान, पख्तूनख्वा की अवाम ये मुतालबा करती है कि जो एनएफसी की मीटिंग नहीं हो रही और एनएफसी फाइनल नहीं हो रहा, जिसमें हमारा 14.6% से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 9.4% से ज्यादा होगा, उसकी मीटिंग जल्दी बुलाई जाए और हमें हमारा हिस्सा दिया जाए जो 350 अरब से ज्यादा है। जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है वो हाथ उठाए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारे वाजबात हैं मरकजी हुकूमत पर, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, हम सब का वो मुतालबा है कि वो हमें वापस दिया जाए। दोनों हाथ उठाए इस पे। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए। सदा हक तेरा, सदा हक, सदा हक, सदा हक। मेरे पाकिस्तानियों, खासकर मेरे पख्तूनों, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं, जब तक मुझ में सांस है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं ये भी वादा करता हूं कि इलेक्शन से पहले अपनी सियासी तारीख में जो वफा मैंने अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से निभाई है, मरते दम तक वो वफा निभाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई दौलत ना मुझे खरीद सकती है, ना मुझे दबा सकती है, ना मुझे झुका सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जमो कबाइलों,